Today, I want to talk to you about that why youngsters are not willing to join their family-run businesses, why they are shifting away from this legacy, right? So इस बात को लेकर के मेरे एक भैया है, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है. He came to me and he said that Ashish, my son has completed his studies, but now he is not interested to join my business. So मेरे इस business का क्या होगा, which I have created and I have invested my whole life. And this business he has created for his future generation, and he believes that this is a very profitable business, and if his son joins this business, his future will be secured. So अगर हम पेरेंट्स के नज़रिए से समझने की कोशिश करें जो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो they have actually spent their huge life in establishing that kind of legacy, not only them but their generations also, right? And whereas if we think from the angle of the present generation, so they have different aspirations, they have different dreams, and they don't want to join their family-run business. Not everybody, but most of the kids, most of the new generation and the youngsters have their different, ambitions. So ये dynamic shift ये क्यों है और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से जो youngsters हैं they want to do something else. They either want to go for jobs और वो अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको बिजनेस नहीं करना है. They don't want entrepreneurship वाला lifestyle, but they want to become independent entrepreneurs. They are not ready to take up their family businesses. So why this problem is nowadays very common, and especially when in our country everybody is talking about starting new businesses. We all understand there are less employment opportunities, and if the parents have created and established good business empire, so why not to take up that journey and take it forward? So ऐसा क्या कारण है उनको समझने की कोशिश करते हैं. तो एक जो सबसे पहला कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो फैमिली रन बिजनेसेस है दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होते. तो वहाँ पे क्या होता है, जब यंग जनरेशन होती है उनको लगता है कि यार यहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ अलग तरीके का है, नथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, एंड इन दिस एनवायरनमेंट आई कैन नॉट वर्क. दूसरा एक और कारण क्या होता है कि जब उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर स्टडीज़, उनका एक टेक्निकल एजुकेशन हो गया और हाई स्टडीज़ वो कर चुके हैं, तो दे फील कि यार दिस बिजनेस विच माई पेरेंट्स हैव बीन रनिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़ और अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन विच आई हैव टेकन, राइट. तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विद आई जॉइन माई फैमिली बिजनेस तो मेरे एजुकेशन की वैल्यू कम हो जाएगी. So that can also be one of the reasons why they want to take up some job. उन्हें लगता है कि if I take up some job, so I'll be able to prove myself and justify that whatever I've studied, I'll get a place to implement all those things in that domain. Next reason could be कि उन्हें लगता है कि हमारे existing family business है, this is totally owner dependent, right? यहाँ पे one man show होता है. Most of the families में क्या होता है कि we can call it a kind of a nana company, which is a very typical trend in the family-run businesses, that only the senior most person in the family is the decision taker. So whatever he has said, that has to be implemented by the entire team. So वहाँ पे क्या होता है, there is lack of professionalism, and nobody is taking suggestions or inputs or feedback from anybody else. So वहाँ पे जो decision जो एक पर्सन ने ले लिया, that has to be obeyed like anything, मतलब that's an order and it must be obeyed वाला situation होता है. That's why the young people or the youngsters they feel कि नहीं इस टाइप के environment में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे. और एक रीज़न जो होता है that is a generation gap, क्योंकि जो आपकी family run business की जो maximum team होती है, because now when they had started their business at that time, so the people who are there, you can say the loyal team, the core team of that management is वो oldies हैं, वो लोग हैं जो उस टाइम पे आपके साथ थे. बट जब यंगस्टर्स जब आपका बिजनेस ज्वाइन करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे तो यंग टीम नहीं है, यहाँ पे डायनामिक टीम नहीं है. सो दे फील दैट गैप कि यहाँ पे जनरेशन गैप होगा और हु विल अंडरस्टैंड
माई आइडियाज़ हु विल बी देयर, जिसके साथ मैं बात शेयर कर पाऊँगा। यहाँ पे मुझे बहुत ही अलग तरह के एनवायरनमेंट में मुझे काम करना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम होती है कि जो फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में चलाए जाते हैं। सो वहाँ पे देयर इज़ वेरी लेस स्कोप फॉर इनोवेशंस, you know, you can't, there is no scope for, you can say, the fresh ideas. If you want to change something, to change is not something which is very easy. People are not willing to, adopt to new technologies. वहाँ पे वही पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेज में बिजनेस को किया जाता है। सो अगर आप एक नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, बट दे फॉलो देयर बिलीफ सिस्टम दैट नहीं ये ऐसा ही होगा। They have their own norms, their own code of conducts, which they don't want to change. So ये बहुत से रीज़न रहते हैं कि जिसकी वजह से यंगस्टर्स को लगता है कि नहीं, वो मतलब एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट होगा, विच देयर इज़ नो स्कोप फॉर देयर फ्रेश आइडिया, इनोवेशंस। एंड सेकेंडली, बहुत से बिजनेसेस पे ये भी प्रेशराइज किया जाता है कि जो यंग जनरेशन जो है, if their kids, they will join our children, they have to, join their business, so they will have to sit throughout the day, at the office, and they have to spend their whole time. So what they feel कि यार हमारे पास अपने पर्सनल लाइफ के लिए तो टाइम ही नहीं रहा, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कब घूमने जाएंगे, हम लोग वेकेशंस में कब जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, विच ऑलरेडी देयर पेरेंट्स हैव बीन टेकिंग अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उन्हें लगता है कि इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके shoulders में डाल दी जाएगी, and they'll not be enjoying their life because they are young and they have their different ambitions. So उनको वो fulfill करना है, और उसके लिए उन्हें वो टाइम या वो सब चीज़ें नहीं मिलता, या लैक ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हो, एक रीज़न उन्हें लगता है। इसके लिए क्या होता है कि उन्हें लगता है कि हम ये फैमिली बिजनेस नहीं चलेंगे। कई बार एक और बहुत टिपिकल रीज़न होता है, विच इज़ वेरी not very common, but yes, जो आपका family business होता है, the young generation which they want to do is, again, there is a different opinion. हो सकता है आपका family business ऐसा हो जिसे वो आगे carry forward ना करना चाहता हो, वो उसके passion के साथ मैप नहीं करता। He does not like what you are selling, he does not want to work in that industry. So that is also another reason why the young generation is not willing and they want to do something else. और उनको लगता है कि अब एक जगह में, एक सिटी में बाउंड हो जाएंगे, वी हैव टू एक्सपैंड दिस बिजनेस। सो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट हैप्पीली रेडी टू पार्टिसिपेट देयर इन फैमिली रन बिजनेसेस। बट इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारे जो जनरेशन्स थे बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, उसको आगे क्या ले जाने वाला जो है वो यंगस्टर्स अगर उस इनिशिएटिव में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देन दैट्स ओनली अ प्रॉब्लम। सो ये कुछ रीज़न थे विच वी आइडेंटिफाइड, हमें लगता है, जिनकी वजह से द यंगस्टर्स आर नॉट विलिंग टू जॉइन द फैमिली बिजनेसेस। सो लेट्स टेक अ डिस्कशन फॉरवर्ड ऑन व्हाई यंगस्टर्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम देयर फैमिली रन बिजनेसेस। सो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एंड हाउ यू कैन एनकरेज योर किड्स टू कम एंड पार्टिसिपेट in your venture and take this legacy forward. So इसके लिए it's very important कि आप उनके mindset को समझें, because what exactly is there in their mind, that's very very important. ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने। सो इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस ओनर का बेटा या बेटी उनके बिज़नेस को ही ज्वाइन करेंगे। सो आज ड्रीम्स, उनके गोल्स क्या है, उनके एम्बिशंस क्या है, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट दैट स्पेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप उन्हें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए, उन्हें अपने टैलेंट को प्रूव करने का मौका दीजिए। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर स्किल्स, आप उन्हें अपने बिजनेस में रोल दीजिए, सो दैट दे विल बी एबल टू लर्न द बिजनेस ऑल्सो एंड दे विल बी एबल टू गेन द एक्सपीरियंस ऑल्सो। जो कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सीखना चाहते हैं, वही मौका आप उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करके दीजिए। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट योर सन और योर डॉटर, दे वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर बट दे डोंट वांट टू जॉइन योर बिजनेस। दैट्स व्हाई दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप।
सो उन्हें स्टार्टअप में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जो आपके बिजनेस में नहीं मिल पा रहा, बिकॉज आपका बिजनेस एक ट्रेडिशनल वे में चल रहा है और स्टार्टअप में उन्हें न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है एंड दे कैन डू लॉट ऑफ इनोवेशंस. सो व्हाई डोंट यू गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस. इससे आपको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ देयर न्यू आइडियाज़ इनोवेशंस. आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाओगे और जो आप जिस स्पीड से आप स्केल अप कर पा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से वो लोग आपके बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं. सो वन मोर थिंग विच हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी. सो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, सब किसी को लगता है कि उनकी खुद की पहचान हो, वो अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली रन बिजनेस के थ्रू ना पहचाने जाएँ. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें एक मौका दें कि वो खुद की अपनी पहचान बना पाएँ. तो डेफिनेटली आप उनके लिए अपने ही बिजनेस का एक छोटा ब्रांच या यूनिट उनके लिए स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे उन्हें मौका दीजिए कि वो खुद से उसे एस्टैब्लिश करें. इसकी दो एडवांटेजेस होंगे. दे विल क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी, दे विल बी एबल टू स्केल इट अप. एट द सेम टाइम दे विल हैव रियलाइजेशन दैट हाउ टू रन बिजनेस. दे विल रन द चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज जो प्रॉफिट्स जो आपने फाइनेंशियली स्टेबल अपने बिजनेस को किया है वो इतना ईजी नहीं होता. एंड देर ऑल्सो यू नो व्हेन दे स्ट्रगल, दे फेस डिफिकल्टीज, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, देन दे हैव दिस रियलाइजेशन कि फाइनेंशियली किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना बहुत चैलेंजिंग होता है. बिकॉज जब वो अपना खुद का यूनिट चलाएंगे तो उन्हें दोनों चीज़ें आ जाएंगी. उनके खुद को बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज योर एफर्ट्स एंड दे अंडरस्टैंड कि आपने कितनी मेहनत से इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाया है. क्योंकि बिज़नेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना एक बहुत ईजी गेम नहीं है.